Okay, now. Hello friends, my dear students. Today my topic is pronoun and I'm going to explain pronoun with their definitions. Now have a look. Now first definition is pronoun. Pronoun is a word which is used in the place of noun. Okay, or we can say noun is a word instead of a noun. Okay, now for example, Sohan is a student. He reads in class 10. Okay, now here is Sohan is noun. Okay, and pronoun is he because he is used for Sohan, so that is he is pronoun. Okay. Okay, now after the definitions of pronoun and with examples, now there is one thing is how many kinds of nouns. So there are 10 kinds of noun. There are 10 kinds of pronoun. Now one thing is there are the 10 kinds of pronoun, so we can't sometimes remember and keep it in mind all the kinds names. So I think we can learn by just one by trick, that is a rapid. If we write R E P I D, okay, R E and PID by 3, 1 and 2. It means R comes 3 times, E comes 1 times, and P comes 2 times, I comes 2 times, and D comes 2 times. Okay, with the starting of the alphabets. Okay, now I will explain all the kinds of pronoun with their explanations and examples. Now, okay, after the definitions of pronoun, there are the 10 kinds of pronoun. Okay, and that is personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, relative pronoun, and interrogative pronoun. Okay, sometimes it's difficult to keep it in mind because there are the 10 kinds of pronoun, so we can't keep in mind sometimes. So we have a phone tricks that you can use. That is the we can write rapid. Okay, REPID. Okay, now see, we can R. Okay, first letter is R. Okay, R, and we have to keep that one streaks, that is the rapid, and we can write 3, 1 and 2 with the group of R. R comes 3 times in the kinds of pronoun, and E comes 1 times. Okay, and PID is the third one, another group, PID. Okay, it means P comes 2 times in the kinds of pronouns, I comes 2 times, and D comes 2 times. Okay, now have a look. R for reflexive, and R relative and reciprocals. R comes 3 times in the kinds of pronouns. Okay, now E for emphatic, and E only 1 times comes in the kinds of pronouns, emphatic. Okay, now last one, the P. So P, personal and possessive, because it comes 2 times in the kinds of pronoun. And then I comes 2 times, interrogative and indefinite pronoun. Okay, and the last one D. D comes 2 times, demonstrative and distributive pronoun. So this is maybe something helpful to keep in the minds, keep in mind, because 10 kinds of pronouns we sometimes forget it just because of the 10 kinds. So we can learn by REPID, rapid. There are 3, 1, 2, and it will remind us the all kinds of pronoun. After the kinds of pronoun, let's have a look definitions of all kinds of pronouns. First is personal pronoun. First is personal pronoun, and the definition is I, we, you, he, she, it, and they are called personal pronoun. Okay, this is the personal pronoun definition. Okay, for example, I, we, you, he, she, it, they are called personal pronouns. Okay, and possessive pronoun. Second is possessive pronoun. Possessive pronoun, the pronoun used to show possession is called the possessive pronoun. For example, my, our, yours. And third is reflexive pronoun. The pronoun
myself, ourself, yourself, himself, herself, and themself are called reflexive pronoun. Okay, now four is emphatic pronoun. Myself, ourself, yourself, himself, and are called emphatic pronoun, but when they are used for sake of the emphasize. Okay, for example, you can do it yourself. The five is demonstrative pronoun. This pronoun used to point out the object. This, that, this, those. For example, this is a book. Okay, now understand in Hindi. Now first is personal pronoun. Okay, we can discuss the kinds of pronoun. Okay, the first is personal pronoun. Okay, and in Hindi we can say व्यक्तिवाचक सर्वनाम. Possessive pronoun means अधिकारवाचक सर्वनाम. Reflexive pronoun means निजवाचक सर्वनाम. Emphatic means बलदायक सर्वनाम. And demonstrative means संकेतवाचक सर्वनाम. ओके, ना फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में कह सकते हैं व्यक्तिवाचक, जिसके द्वारा हमें व्यक्ति क्या बोध हो, या जिसके बाद व्यक्ति के बाद हमें नाउन का यूज़ नहीं करना पड़ता है, उस जगह पे हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इन सब का यूज़ जो होता है हमेशा नाउन के बदले में यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉसेसिव प्रोनाउन. पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया हमारा अधिकारवाचक सर्वनाम. अधिकार, जिस इस सर्वनाम का यूज़ हम किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार शो करने के लिए दिखा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल माइन और दिस इज़ माई बुक, यह मेरा किताब है, क्योंकि इस पे हम अपना अधिकार दिखा सकते हैं, ये मेरा बुक है. तो जब ये सर्वनाम के द्वारा हम किसी पे अधिकार दिखाने का शो हो, उसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं. थर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव मीन्स हिंदी में हम इसे कह सकते हैं निजवाचक सर्वनाम, जिससे अपना बोध हो. द प्रोनाउन जिसके द्वारा हम माई सेल्फ, आवर सेल्फ, दे सेल्फ, ये सब जो हो गए, ये सब इनके टेंस हो गए, मतलब इसके प्रकार हो गए. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गए निज. सिंपल सी वे में हम कह सकते हैं जिससे हम अपना, इसमें एक सब्जेक्ट जो है कुछ भी वो करता है, तो उसका जो असर जो होता है वो खुद उस सब्जेक्ट पे ही होता है. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम. मतलब अगर सब्जेक्ट कुछ भी या करता कुछ भी करता है, तो उसका असर जो है वो खुद उस पर ही पड़ता है. जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ मतलब मैंने खुद को चोट पहुँचाया. खुद को चोट पहुँचाया मीन्स हर्ट में सब, मतलब उसने जो भी किया उसका असर वो खुद उसी पे पड़ा, सब्जेक्ट पे पड़ा. तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन प्रोनाउन हुआ, क्योंकि उसने जो भी किया उसका असर जो भी हुआ, जो भी उसका नुकसान हुआ, किसका हुआ, उसका हुआ. उसने हर्ट किया तो उसे नुकसान हुआ, तो उसका नुकसान हुआ. तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद उसने नुकसान किया. अब हम देखते हैं और इम्फेटिक प्रोनाउन. इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा मिलता है, बट इसमें क्या होता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ सेम है, बट इसमें क्या हो रहा है कि इम्फेटिक प्रोनाउन. इम्फेटिक में तो हम उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बल देते हैं. सब्जेक्ट जो भी करता है, कुछ भी काम करता है, तो उस पर जो हम लोग उस पर कर्ता का शब्द जो होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा बल देने के लिए करते हैं. बल मीन्स हो गया तुम्हारा, जैसे कुछ भी हम काम करते हैं, यू फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ. मतलब सब्जेक्ट या कर्ता जो है वो काम खुद ही कर सकता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया जाता है कि वो काम जो है वो खुद कर सकता है. मतलब कर्ता का असर जो है तो खुद उस पर भी पड़ता है ज़्यादा. सेम इसी तरह लास्ट है क्या है हमारा, 5 नंबर है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट. पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट मीन्स हो गया, इस प्रोनाउन का डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स क्या होता है कि हम उसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक स्वरनाम. संकेतवाचक स्वरनाम में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट को हम लोग निकटता इंडिकेट करने के लिए हमें इसका यूज़ करते हैं. जैसे यह एक किताब है, या दिस इज या एक ब्लैक बोर्ड है, दिस इज ए ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, एनीथिंग कुछ भी. तो इस चीज़ पे हम जब भी इसका यूज़ करेंगे कोई चीज़ को, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, दिस इज ए मार्कर, दैट इज ए मार्कर, एनीथिंग. तो जब हम किसी चीज़ को इंडिकेट करेंगे जस्ट ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए हमें इसका यूज़ करना होता है, और वो कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव. इसके लिए हम लोग दिस दैट दिस दोज ये सब से जो भी हैं, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव के एग्जाम्पल्स हैं. Okay, now the indefinite pronouns definition. Now 6 is indefinite pronouns. Indefinite pronouns does not refer persons or things in a particular way. Okay. Anybody can beat him. For example, anybody can beat him. There is no sense of any noun. That is a hidden. So we can use anybody, somebody. It does not refers some exactly noun or pronoun. That's why this is called the indefinite pronouns. Okay. Now next is distributive pronoun. When each other and neither are used as pronoun, they are called distributive pronouns.
For example, each of you is guilty. Okay, and it is reciprocal pronoun. Each other and one other are called the reciprocal pronoun. For example, they love each other. Okay, and the relative pronouns. A relative pronouns refers to some noun or pronoun. Okay, for example, the boy who is playing is my. A relative pronoun refers to some noun or pronoun. For example, the boy who is playing is my friend. And here we can use, and all the WH words is called the relative pronouns, and is also used for the most time of the repetitions of noun. It stop the relative pronouns, and WH words use for the repetition, stop the repetitions of the noun words, so that's why use the relative pronouns. Okay, and the last one is the interrogative pronouns, and pronoun used for asking questions is called the interrogative pronouns. For examples, who are you? Here it indicates the questions, so this is an interrogative pronoun. Okay, okay, now I'm going to explain you in हिंदी. Okay, अब हिंदी में से देख लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अनिश्चयवाचक सर्वनाम मीन्स क्या होता है? इसमें किसी हमें निश्चित नाउन का मतलब बोध ही नहीं होता है. ठीक है, वो हमें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम. तो यहाँ पे जैसे देख लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू थिंग्स ऑफ प्रोनाउंस, मतलब एनीबडी. फॉर एग्जांपल से हम देख लेते हैं एनीबडी कैन वेट इन, मतलब एनीबडी मतलब कोई भी, मतलब इसमें एक एग्जैक्टली जो है नाउन का यूज़ नहीं किया जा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल तुम हम ये भी देख सकते हैं समबडी. समबडी मतलब कोई. समबडी, फॉर एग्जांपल समबडी इज टॉल इन माई बुक. ओके, ऑल आर जेंटल्स. ओके, मीन्स इसमें कहने का मतलब ये हो रहा है कि हमें कोई भी इसमें निश्चित जो है तौर पे कोई भी हमें नाउन का यूज़ या हमें पता नहीं चलता कि इसी आदमी ने ये क्या है, तो वो हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अच्छा, नेक्स्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम. व्यष्टिवाचक सर्वनाम में क्या हो जाता है हमारा, इसमें क्या होता है इज अदर एंड नदर आर यूज्ड एज अ प्रोनाउन. मीन्स क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें हमें ऐसा याद कर सकते हैं, इसमें हमें कुछ अलग अलग मतलब क्या होता है एक दूसरे से हमें अलग करना है, या फिर इससे अदर जैसे कुछ डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में या नाउन के बीच में कुछ हम जब डिफरेंसेस कुछ देख सकते हैं कि वो एक दूसरे से थोड़ी अलग हैं, या फिर हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ईजी वे में समझे तो डिस्ट्रीब्यूटिव में समझो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें हमेशा इस वर्ड्स का यूज़ होता है. जैसे ईच ऑफ यू इज गिल्टी. ईच ऑफ यू मीन्स प्रत्येक, मतलब हर एक इंडिविजुअली को इसमें किया जाता है अलग अलग, तो इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव को हो गया. ईच ऑफ बॉय इज गिल्टी, आइदर, ये सब ये सारी जितने भी होते हैं आइदर और या तो या नहीं तो. ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होने के बाद अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स होता है हिंदी में हम लोग बोलते हैं परस्पर बोधक सर्वनाम. परस्पर बोधक सर्वनाम में सेम हो गया हमारा ईच अदर एंड वन अदर आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोनाउन. मीन्स हो गया एक दूसरे. इज अदर मीन्स होता है वन अदर एक दूसरे, मतलब ये दोनों अलग होते हुए भी एक से फीलिंग्स थोड़ी सिमिलरिटीज हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें समझ सकते हैं दे लव ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे को लव करते हैं. ओके, द रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम. इससे हमें ये समझ में आता है कि संबंध, तो जब हमें रिलेटिव प्रोनाउन जो किया करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो संज्ञा को जो है वो दोबारा रेपिटेशन से इसे रोकता भी है, और प्लस उसके सेंटेंस में और बाकी जो शब्द है उनसे वो उसको संबंध को दर्शाता है. ठीक है, तो उसकी जगह पे हमें इसका यूज़ करना पड़ता है हु, वाट, होम. इन सब WH वर्ड्स का हम यूज़ करके हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस बना सकते हैं, जो कि नाउन के रेपिटेशन को रोकता भी है और प्लस दूसरे सेंटेंस के साथ उसके संबंध को दर्शाता भी है. ओके, उसके बाद लास्ट वन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सिंपल सी है काफ़ी, जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम. किसी भी शब्द के द्वारा जब हमें किसी आस्किंग क्वेश्चन से कुछ भी प्रश्न का जब बोध होगा तो हम उसे कह सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम. ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है. हु आर यू, simple interrogative pronouns. Okay, now all these the kinds of pronouns, and all definitions will be taught by me today. And thank you very much for watching my video. Thank you.